آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آج کل بلکہ ابر تک یکساں خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ آج رات خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا. سر آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں کراچی کے اندر خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ خدا کراچی کے اندر مجھے استعمال کر رہا ہے. خداوند کی شکر گزاری کر بہت سے بہن بھائیوں نے جو کل بھی لائیو ہوئے تھے, بہت سے بہن بھائیوں نے برکت بھی پائی. تو اسی طرح آج بھی میرے ساتھ پاسٹر مائیکل بھائی صاحب, ہم آپ کو ویلکم خوش آمدید کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ جانتے ہیں بھائی صاحب نے کل بہت اچھا میسیج دیا. کلام میں لکھا کام یا کلام جو کچھ بھی کرو خداوند یسوع کے نام سے کرو, اس کے وسیلہ اس کی شکر گزاری کرو. تو ہم اپنی اس عبادت کا آغاز یسوع کے نام سے کریں, ایک دعا سے کریں گے. تو اس دعا سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اس پیج کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں تاکہ بہت سے بہن بھائی آج ہمیں جوائن کریں اور کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں, توبہ کریں, نجات پائیں. تو ضرور اس کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں اور برکت پائیں. تو ہم پاسٹر مائیکل کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے, دعا سے اپنی میٹنگ کا آغاز کریں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں, جتنے بھی زندگیاں آن لائن سب دیکھ رہی ہیں, ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ آج شام خدا ہر ایک جان, ہر ایک زندگی کو خدا کا پاک روح چھوئے, تاکہ خدا کا پاک روح آج شام کثرت سے کام کرے. ہم شکر گزار ہیں آسمانی باپ کہ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. خدا یسوع جی, ہاں خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا, اور خواہ آسمانیوں کا, خواہ زمینیوں کا, خواہ زمین کے نیچے رہنے والوں کا. ہاں خدا ہم سے بات تیرا اقرار کرے گی کہ تو ہی خداوندوں کا خدا ہے, تو ہی رب الافواج ہے, تو ہی اسرائیل کا خدا ہے, تو ہی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. ہم مبارک کے خداوند, ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اے یہوہ پاک خدا, ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس شام کے لیے, اس محفل کے لیے, اس وقت کے لیے خدا جو تیرے نام سے رکھی گئی ہے. ہاں خدا جتنی زندگی اس وقت اے خدا ہمیں نہیں بلکہ یہ سب تجھے آن لائن دیکھتی ہیں. ہاں خدا تجھے آن لائن سنتی ہیں اے خدا, تاکہ وہ تیری میٹھی باتوں کو سنے, تاکہ تیری آواز کو سنے. اور آج جتنی مناجاتیں, جتنی اے خدا فریاد پریئر ریکویسٹ وہ تیرے پاس لاتے ہیں, ہاں خدا تو ایک ایک دعا کو سننا اور قبول کرنا اور جواب دینا تاکہ ہر ایک جان کثرت سے برکت پائے. خدا یسوع جی, یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہاللیلویہ. تو جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ضرور میں پھر ایک بار کہوں گا ضرور اس کو شیئر کریں, اور خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. تو بھائی صاحب جب کلام کریں تو ضرور کلام کو سن کر اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. تو جب آپ خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں تو خدا تب ہی برکت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, سرفرازی دیتا ہے. تو میں اسی طرح اور بھی جتنے بہن بھائی آج ہمیں جوائن کرے تو ضرور اپنی ریکویسٹ ہے اپنا نام لکھ کر سینڈ کیجئے گا, جو بھی پرابلمز ہے وہ لکھ کر سینڈ کیجئے گا. میں اور پاسٹر مائیکل ہم آپ کے لیے نام بنام آپ سب کے لیے دعا کریں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تو میں پائی صاحب کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کرتا ہوں, تاکہ ہم پائی صاحب کو دعوت دیں گے تاکہ خدا کا کلام آپ سب کے درمیان بیان کریں گے, تاکہ ہم خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آج ہم برکت پائیں گے, ترقی پائیں گے. جو بھی میرے بہن میرے بھائی آج رات آپ کی زندگی کے اندر مشکلات ہے, پریشانی ہے, آج رات آپ اپنے دل کے دروازے کو کھولیں. یسوع مسیح آپ کا ویٹ کر رہا ہے. یسوع مسیح نے آپ کے لیے 1 کم 40 کوڑے کھائے تاکہ میرے بہن میرے بھائی آپ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے, پاور ہے. جب اس کے کلام کے اوپر آپ چلیں گے, عمل کریں گے, اس کے حکم کو مانیں گے, تو آپ جس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں گے آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے. تو بھائی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کرتا ہوں, خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. بہت سے بہن بھائیوں نے کل بھی جو کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکات پائی تھی, تو آج آپ جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میری طرف سے سب کو سلام. خدا آپ سب کو برکت دیں. یہ وقت خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں.
हम माजरत ख्वाह है कि हमने जो वक्त किया लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम ऑनलाइन नहीं हो पाए, लेकिन आप जो इंतज़ार कर रहे थे, आप सब मुबारक हैं कि आप खुदावन का इंतज़ार कर रहे थे, ना कि खुदावन के खादमों का, बल्कि खुदावन का, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मुबारक है, खुश नसीब है वो इंसान, मुबारक है वो इंसान जो खुदा का इंतज़ार करते हैं। आज हम किसी भी क्यू में खड़े होना पसंद नहीं करते, बल्कि ये चाहते हैं कि किसी ऐसी क्यू में, किसी ऐसी लाइन में खड़े हो जहाँ पर रश कम हो, जहाँ पर पब्लिक कम हो, जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल कम हो, ताकि हमारा जल्दी नंबर आ जाए, जल्दी ठोकर लग जाए, ताकि हम जल्दी से अपने काम को निपटा कर घर पहुँच जाएँ या अपने उस मंजिल पर पहुँचे जहाँ हमें जाना है। लेकिन जो इंतज़ार करते हैं, खुदावंद ने कहा कि 4 दिन तक वफादार रहोगे तो ज़िंदगी का ताज भी तुम्हें दूंगा। तो अजीज़ों, हम सब हमेशा खुदावंद के अच्छे वक्त, क्योंकि खुदा का वक्त, गॉड टाइम इज़ अ बेस्ट टाइम, खुदा का वक्त जो है वो अच्छा वक्त है, खुदा के वक्त का इंतज़ार करना सीखें। जब खुदा के वक्त का हम इंतज़ार करते हैं तो उस वक्त पर खुदा जो हमें बरकत देता है वो बरकत खुदा की ओर से आती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वाज़ की किताब में कि जो चीज़ खुदा की तरफ से है वो हमेशा के लिए, उसमें कोई कमी पेशी ना होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो भाई साहब कलाम को बयान करेंगे, तो आज कलाम के वसीला मेरा ईमान है बहुत से बहन भाई तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब हम आप सब के लिए दुआ करेंगे, ज़रूर अपनी अपनी रिक्वेस्टें सेंड कीजिएगा। जब हम आपके लिए दुआ करेंगे तो आज रात खुदा का पाक रूह आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। बहुत से बहन भाई हैं जो कहते हैं कि हम जिस काम के अंदर हाथ डालते हैं, जो भी काम हम शुरू करते हैं, हम आगे को जाते हैं लेकिन पीछे आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम को ऑनर नहीं देते, उसके कलाम के मुताबिक हम नहीं चलते। बाद में हम कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। तो मेरे बहनों भाई, ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा ने आपको नाकामी के लिए नहीं पैदा किया, खुदा ने आपको कामयाबी के लिए पैदा किया है। आप कामयाब लोग हैं, तो उसके बेटी या बेटे उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो मैं भाई साहब को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। कलाम के लिए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे और सुनेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। कलाम में लिखा है खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं बनाकर इस्तेमाल करता है और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। हम पाकरू को वेलकम करते हैं, तालियों के साथ पाकरू को वेलकम करेंगे और भाई साहब को साथ वेलकम करेंगे। लूका की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 40 से 42 आयत और फिर 49 से 52 आयत। लूका 8 बाब 40 से 42 और उसके 49 से 52 आयत। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ न दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फ़कत एतक़ाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा मातम न करो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़कर और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दो। लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की, ये माजरा किसी से ना कहना। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया।
खुदावन के कलाम में हम आज गौर करते हैं अजीजों, यायर की जिंदगी पर। यायर कौन है? जब हम लूका के इंजील को पढ़ते हैं उसके 8वें बाब उसके 40वें आयत से, तो हम यायर नाम एक शख्स की जिंदगी पर गौर करते हैं कि यायर इबादत खाना का सरदार काहिन के इबादत खाना के सरदार काहिनों में से था और वो यीशु के पास आया है। वो यीशु के पास आकर यीशु के कदमों में गिर पड़ा। और क्यों गिर पड़ा? क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी उसकी बेटी की कि वो मरने को थी, यानी कि उसके पास और कोई रास्ता ना था। क्या यायर इबादत खाना का सरदार काहिन, इबादत खाना का लीडर, क्या उसने बड़े बड़े हकीमों को अपनी बेटी को निरीक्षण करवाया होगा? क्या अपनी बेटी को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, उस जमाना के जो बड़े हकीम थे, सर्जन थे, उनके पास नहीं लेके गया होगा? हाँ, जरूर लेके गया होगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स उससे अपनी बेटी का इलाज भी करवाया होगा कि किसी तरीके से मेरी बेटी जो है वो बच जाए, चंगी हो जाए, अच्छी हो जाए। लेकिन एक ही हस्ती, एक ही खुदा है, एक ही शख्स है, वो है यीशु अल मसीह, जो उसे बचा सकता था। और वही पावर, वही कुव्वत उसे यीशु के पास खींच कर ले आई। और वह थक हार कर यीशु के कदमों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा, क्या कहने लगा कि ऐ उस्ताद उठ और मेरे साथ चल, ऐ रबी उठ और मेरे साथ चल, ऐ खुदावंद उठ और मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरने को है, मेरी बेटी मरने को मेरे साथ चल। यीशु ने कहा, अच्छा मैं तेरे साथ चलता हूँ। यीशु उसके साथ चलने लगा। और जब यीशु उसके साथ चलने लगा तो क्या लिखा कि उसके साथियों में से आकर एक ने कहा कि अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है, बेटी तो मर गई, अब कोई फायदा नहीं है। अजीजों, आज के ज़माना में शायद आपके घर के हालात, शायद आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कोई हमने 40 रोज़े भी रख लिए हैं, हमने दुआएं भी कर ली हैं, हम संडे के संडे चर्च भी जा रहे हैं, हम एवरी डे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट की डेली लाइव दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदा जवाब नहीं दे रहा, फिर भी खुदा हमारी सुन नहीं रहा। क्या हम यायर की मानद तो नहीं? क्या हमें यायर की मानद बनना है? आज खुद को आप यायर की मानद बनाएं, यायर की मानद बन जाएं। यीशु का पल्लू नहीं छोड़ना। यीशु के कदमों के आकर गिर पड़ा यायर, और जब तक कि उसकी बेटी चंगी नहीं होगी, जब तक कि उसकी बेटी जी नहीं उठी, उससे यीशु का जिंदगी, क्योंकि यीशु का यह वादा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और खुदावंद यीशु जब उसके घर पर गया और उसकी बेटी को सोए हुए देखा, उसने क्या कहा? लोग वहाँ रो पीट रहे थे, मातम कर रहे थे, कहा मातम बंद करो, रोना बंद करो, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। यानी कि जो नामुमकिन काम आज आपको नामुमकिन लग रहा है, जो मुमकिन काम आपको नामुमकिन लग रहा है, खुदावंद यीशु आज आपसे कह रहा है उससे नामुमकिन ना कहो, बल्कि वो क्या है? मुमकिन है। यीशु कह रहा है कि वो हो गया है। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि आज खुदावंद आपको ये वर्ड डिलीवर कर रहा है, अपना कलाम डिलीवर कर रहा है कि तेरा काम हो गया है, तेरी आज सुनने गई है। हालेलुया। दानियल अभी जब दुआ कर रहा था, घुटनों के बल होकर, एक सिंह जब वो दुआ में ठहरा तो क्या कहा फरिश्ता वाला उससे? क्या कहा कि जिस दिन तू दुआ में ठहरा, जिस दिन तू फरियाद कर रहा था, उसी दिन तेरी सुन ली गई। हालेलुया। आज यीशु भी आज आपसे कह रहा है कि अगर आप यायर की मानद बनकर यीशु के पास आए, अगर आप यायर की मानद बनकर यीशु के पास आए, तो यीशु ने आपकी सुन ली है। यानी कि वो काम जो हो नहीं सकता, वो खुदा यीशु कर सकता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, ईमान रखे खुदा पर। अगर आप कितने महीनों से, कितने सालों से, अगर 40 सालों से भी किसी बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई अजीजों को हम जानते हैं कलीसिया में, जो 18 बरस से बेऔलाद हैं, जिनकी 10 साल से शादी नहीं हुई, जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, और वो कितने खादमों से दुआ करवा चुके हैं, वो बड़े बड़े क्रूसेड पे भी जाते हैं, वो अच्छा, अगर कोई बीमार है, बीमार लोग अच्छे से डॉक्टर
डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है, और वो रोज़ी भी रखते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। तो आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, खुद को गायक के मारे बनाएं कि थक हार कर किसके कदमों में आया? यीशु के, क्योंकि शिफा किसके पास है? यीशु के पास है। जिंदगी किसके पास है? यीशु के पास है। तरक्की किसके पास है? यीशु के पास है। कामयाबी किसके पास है? यीशु के पास है। रोशनी किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रीच किया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं यार की मानिद हमने बनना है जिस तरह उसका ईमान था कि मैं यीशु के पास आऊँगा और यीशु मेरी बेटी को क्या करेगा? जिंदा करे। इसी तरह हम और मत्ती की इंजील उसके 8 बाब में देखते हैं सूबेदार के बारे में, जो कि उसका जो नौकर, उसका खादम जो फालिज का मारा पड़ा था। तो कलाम में लिखा कि वो जो सूबेदार था वो यीशु के पास आता है, और देखे सूबेदार का ईमान देखें और याहिर का ईमान देखें कि उसकी वहाँ पर उसकी बेटी मरी है, और सूबेदार के जो नौकर था उसका फालिज है। तो जो सूबेदार है वो उसका बड़ा रोब होता है। तो जब वो यीशु के पास, उसको पता है कि यीशु जिंदगी देने की कुदरत रखता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, यीशु अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूबेदार था वो यीशु के पास आता है और यीशु को क्या कहता है कि है मालिक, मेरा जो खादिम है वो फालिज का मारा घर में शिफा दे। तो यीशु मसीह उसको क्या कहता है कि मैं तेरे साथ घर जाऊंगा और उसको क्या करूंगा? शिफा। यीशु को क्या जवाब देता हूँ? यीशु को कहता है खुदावन अगर तू मुझे यहीं से कह दे, क्या कहता है कि अगर तू इधर से कह दे, यहाँ से कह दे, तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज रात कि देखो उसका ईमान देखे, वो किसके लिए इतनी परेशानी ले रहा है, वो किस वजह से मुश्किल के अंदर आ रहा है। वो इस वजह उसका भाई नहीं है। खुदा के कलाम के अंदर लिखे उसका भाई नहीं कि जो उससे इतनी परेशानी ले रहा है, या डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, किसी और के पास लेकर जा रहा है, उसका भाई नहीं, उसका नौकर है। तो आज मेरे जीजों क्या हो रहा है? अगर कोई वर्कर एक दिन ही छुट्टी कर ले, दूसरे दिन उसकी छुट्टी करवा देते हैं, उसको कहते हैं कि यार तूने छुट्टी क्यों की है। लेकिन यहाँ पर देखें खुदा के कलाम के अंदर क्या लिखा? सूबेदार उसको क्या कह रहा है यीशु को कि तू मेरे साथ, इसको क्या कर, इसको शिफा दे, इसको हील कर। यीशु मसीह कहता मैं तेरे साथ आऊँगा। देखिए यीशु मसीह उसको खुद कह रहा है कि मैं आकर उसको क्या करूँगा? शिफा दूंगा। तो उसका ईमान देखें। आप जो खुदा के खादम दुआ तो करते हैं, बहुत से बहन भाई जो दुआएं तो कराते हैं, लेकिन उनका ईमान नहीं होता, उनका ईमान कमज़ोर होता है। जब उनका ईमान ये है वो आगे ऑप्शन छोड़ देते हैं, अगर इस खादम से दुआ कराई फर्क नहीं पड़ा तो मैं किसी और खादम के पास चले जाऊंगी। दुआ कराना बुरी बात नहीं है, बात यहाँ पर किसकी हो रही है? ईमान की बात हो रही है। सूबेदार का क्या था? ईमान था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, मेरा खादम क्या करेगा? शिफा पा जाएगा। क्या उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए उसको? क्यों यीशु के पास आया वो? क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज रात कि यीशु जवाब नहीं देता। यीशु मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। यीशु ये नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। समटाइम डॉक्टर्स से जवाब दे सकते हैं कि हम अब क्या कुछ नहीं कर सकते, हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब डॉक्टर ये कहते हैं फिर हमें खुदा याद आ जाता है, फिर हम खुदा की राह पे चलते हैं। लेकिन जब पहले आप तंदुरुस्त हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। यहाँ पर देखें सूबेदार यीशु के पास आता है और यीशु को कहता है कि मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है। अगर किसी का यहाँ पर कोई भाई या कोई बहन बीमार हो जाए तो पता करने ही नहीं जाते कि हमारा खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहन भाई की बात है, लेकिन सूबेदार का वो अपने नौकर के लिए इतनी परेशानी ले रहा है, उसकी फिक्र कर रहा है कि मेरा कहीं नौकर क्या हो, मर ना जाए। तो इसी तरह हम और कुछ रिक्वेस्टें भी लेंगे। बहुत से बहन भाई हमें लाइव भी देख रहे हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। सबसे पहले सिस्टर नीलम असलम में देख रही है। सिस्टर हम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह ब्रदर विल्सन गौरी देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह
ब्रदर बिट्टू हमें देख रहे हैं लाहौर से, खुदावंद आपको भी बरकत दे। इसी तरह इरफान सोंतरा साहब हमें देख रहे हैं लाहौर से, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और भी जितने बहन भाई हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और एक भाई ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, जॉन स्मिथ उनका नाम है और उनके पास जॉब नहीं। तो मैं भाई साहब आप कहेंगे उनके लिए दुआ करें। जॉन स्मिथ उनका नाम है और उनके पास जॉब नहीं है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु जी तेरे हुजूर खास दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हो, खास कर जिस भाई ने प्रेयर की रिक्वेस्ट की है, ऐ खुदावंद खुदा जितनी भी जिंदगियां, ऐ खुदावंद खुदा जिनके पास जॉब नहीं है, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार की जिंदगी से आज शाम यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद खुदा तू अपना रहम, अपना फजल उन पर जारी कर। खुदा मैं तेरी फेवर कर, मैं खुदा जिंदगियों पर मांग लेता हूँ ताकि खुदावंद खुदा इनको अच्छी जॉब मिले और अच्छी सैलरी की जॉब मुहैया करें, अच्छी कंपनी में जॉब मुहैया करें, ताकि खुदावंद यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम इस जिंदगी में जलाल पाए, ताकि ये जिंदगी बरकत पाए। हाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। ब्रदर जॉन खुदावंद आपको बरकत दे। आपके लिए दुआ की, खुदावंद बहुत जल्दी आपको अच्छी जॉब देगा। इसी तरह हम एक और रिक्वेस्ट भी लेंगे सिस्टर सोहा के लिए। उनके भाई के पास 3 माह से जॉब नहीं पाई, साहब उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, खुदा उनको अच्छी जॉब दे। हालेलुया। उनके लिए दुआ करेंगे भाई साहब। हाँ खुदावंद यीशु जी मैं दुआ करता हूँ खुदा इस भाई के लिए, खुदावंद जिसके पास 3 माह से जॉब नहीं है। हाँ खुदा खुदा हम यायर की इमारत तेरे पास हम यायर की इमारत खुदा तुझसे मांगते हैं। जिस तरह यायर ने अपनी बेटी के लिए ऐ खुदा जिंदगी मांगी और तूने उसको जिंदगी दी, इसी तरह खुदावंद खुदा हम आज उस भाई जॉब नहीं है, इसके लिए जॉब मांगते हैं यीशु। इसे जॉब खुदावंद खुदा अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पे से जॉब मुहैया कर, ताकि खुदावंद तेरा मौजूदा जो मौजूदा तूने यायर की बेटे की जिंदगी में किया वो मौजूदा खुदावंद यीशु, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है यीशु तो मौजूदात का जिंदा खुदा है, तू मौजूदात का खुदा है। हाँ यीशु तो भाई की जिंदगी में अपना मौजूदा करे, ताकि खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करे, तेरी मिरेकल को रिसीव करे, ऐ खुदा तेरी ग्लोरी को रिसीव करे, ताकि यीशु नाम उसकी जिंदगी में जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। जी ब्रदर खुदावंद आपको भी बरकत है, खुदावंद आपको भी अच्छी जॉब देगा। इसी तरह और भी जितने बहन भाई हमें देख रहे जिन्होंने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं की, ज़रूर अपनी रिक्वेस्टें सेंड करें ताकि हम आपके लिए नाम बनाम दुआ कर सकें। तो एक और ब्रदर जमील की रिक्वेस्ट आई है कि मेरी मंगेतर के लिए दुआ करें। जो भी हमारी शादी के अंदर रुकावटें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आज शाम जो भी इन दोनों के अंदर परेशानी, इनके घरों के अंदर परेशानी है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। जी भाई साहब ब्रदर जमील के लिए और उनकी मंगेतर के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा यीशु जी मैं दुआ करता हूँ भाई जमील और इनकी खुदा यीशु के लिए खुदा तुझसे दुआ करता हूँ। हाँ खुदावंद खुदा तू इनकी फरियाद को सुन। हाँ खुदावंद इनकी दरख्वास्त को मैं तेरे पास लाता हूँ। खुदा अपना आसमान तो अपने बंदा के लिए, अपने बेटे के लिए, जमील के लिए खोल खुदावंद यीशु जी, ताकि आसमान ऊपर से और जमीन नीचे से बरकत दे। खुदावंद शादी के लिए तमाम इंतजामात को खुदा तेरे कभी हाथों में देता हूँ यीशु जी। तू आप इनके लिए यहोवा यही बन और इनके घराने की सारी मुश्किल परेशानी को, दुख रोग को यीशु के नाम से मिटा, ताकि ये घराना तेरे नाम से बढ़े, यीशु तेरे नाम से सरफराज हो। खुदा तेरा पाक रूह इनकी मदद और इनकी हिफाजत करे। खुदावंद खुदा हर पल, हर लम्हा, हर वक्त, हर घड़ी तेरा पाक उनके साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आपको भी ब्रदर जमील बरकत दे। खुदावंद आपको और आपकी सारी फैमिली को सरफराज करेगा। जो भी मेरा ईमान है, जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात है, खुदा जहाँ कलाम में लिखा खुदा मांगने से पहले जानता। आप यीशु के बेटियां बेटे हैं, तो हमें खुदा उनके कलाम को जानना कि आज हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आ रही है तो किस वजह से आ रही है, किस किस्म की आजमाइश होती है। तो कलाम में लिखा मुबारक है वो आदमी, वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। तो अगर कोई मुश्किलात भी है तो हमने हर बात के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। तो इसी तरह सिस्टर नीलम ने रिक्वेस्ट हमें किया है कि मेरी मदर के लिए दुआ करें। इसी तरह काशी यूसुफ साहब हमें वॉच करें।
खुदावंद आपको भी ब्रदर बरकत दे और आपकी फैमिली को सलामत रखे। तो भाई साहब हम दुआ करेंगे सिस्टर नीलम की मामा के लिए। खुदावंद यीशु के मैं तेरे नाम से खुदावंद बुजुर्ग माँ के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद खुदा तू शाफी है, तू शिफा का मुंबा है। खुदा सलीब पर कोई कलमी पर तूने अपना खून खुदा अपनी बेटी के लिए बहाया है। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे कोड़े खाने से वो चंगी हो गई है। खुदा हर तरह की बीमारी की कर्स यीशु के नाम से बीमारी की लानत अभी और इसी वक्त खुदा बुजुर्ग माँ के बदन से यीशु के नाम में कैंसिल हो, यीशु के नाम में कैंसिल हो, यीशु के नाम में कैंसिल हो। खुदा उसकी टांग को छू, खुदा उसकी टांग को छू, ओ खुदा से शिफा दे, रिहाई दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि खुदा वो शिफा पाए, बरकत पाए और यीशु तेरे नाम की गवाही दे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत। इससे और हम एक रिक्वेस्ट लेंगे, जैस्पर खोकर भाई की रिक्वेस्ट हम लेंगे। वो कह रहे भाई साहब हमारे लिए दुआ करें। तो जो भी इस बेटे की जिंदगी के अंदर जो भी बदन के अंदर बीमारी है, हम दुआ करेंगे आज रात खुदा का पाक रूह काम करेगा। जैस्पर खोकर साहब के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा मैं दुआ करता हूँ जैस्पर खोकर के लिए खुदा यीशु के नाम में जो भी सारी कमजोरी प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए और इसका पूरा बदन यीशु के नाम से बहाल हो। तेरा पाक रूह से छुए खुदा, ब्रदर खुदा को छू रहा है। आपका दाहिना हाथ, आपकी दाहिनी टांग रिहाई पा रही है और खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है। आपको से रिहाई मिल रही है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और खुदा तेरा पाक रूह से छुए और मुकम्मल शिफा दे यीशु के नाम में, आमीन। जी ब्रदर जैस्पर खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको शिफा दे दी, खुदावंद की शुक्रगुजारी आप करें। इसी तरह सिस्टर नीलम ने एक और रिक्वेस्ट हमें सेंड की है कि हमारे घर के लिए दुआ करें, खुदा में घर अता करे। तो कलाम में लिखा जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। जब खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तो जब खुदा आपके घर बनाएगा, कलाम में लिखा यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं कह देता। तो जितने भी बहन भाई जिनके घर नहीं है तो हम उन सब के लिए भाई साहब दुआ करें ताकि खुदा उन सबको घर मुहैया करे। खुदा में यीशु में तेरे नाम से खुदा तेरे कलाम में लिखा है तू अपने ईमानदारों को खुदा बरकत देता है और फरमाता है कि जमीन पर उनके लिए 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। खुदा बहन का जब यह ईमान है कि यीशु हम तेरे नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, इसके घराने के लिए कि खुदा जमीन पर उनको अच्छा और खूबसूरत घर मुहैया कर, ताकि जमीन पर वो 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी को रसीद करे। खुदा और भी जिंदगियों के पास अपना घर नहीं है, खुदा तुम्हें अपना घर मुहैया कर जमीन पर, ताकि खुदा वो तेरी बरकत को, तेरी फेवर को रसीद करे। खुदा घर जैसी अपने घर जैसी फेवर को खुदा नीलम के लिए मांग लेते हैं, उनकी फैमिली के लिए मांग लेते हैं। तू आप उनके लिए फाइनेंस के जरिए वसाइल मुहैया कर। खुदा तू आप उनके लिए रास्ता बना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा तूने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला से बाप के पास कोई नहीं जा सकता। खुदा यीशु जी तू ही राह, तू ही हक और तू ही जिंदगी है। हम तुझसे होकर खुदा दुआ करते हैं, तुझसे मांगते हैं खुदा बहन की जिंदगी बड़ा काम करे ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे यीशु के नाम में, आमीन। जिससे सही मेरा ईमान है खुदावंद आपको जरूर बहुत जल्दी घर देगा। इसी तरह एक और रिक्वेस्ट आई है सिस्टर सोनिया की है और उनकी गवर्नमेंट जॉब और सैलरी का इशू है, तो हम उनके लिए सैलरी को बहाल करे, खुदा का पाक रूह उनके ऊपर ठहरा रहे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा से दुआ करते सोनिया के लिए खुदा देखिए यीशु तेरे कलाम में लिखा है खुदा जो काम इंसान से नहीं वो खुदा से हो सकता है। खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं यीशु तेरे नाम से खुदा सोनिया के गवर्नमेंट जॉब के लिए दुआ करता हूँ। खुदा जहाँ कहीं भी डिले है, जहाँ कहीं भी रुकावट है, जहाँ कहीं भी डिले है, डिले के स्पिरिट यीशु के नाम में कैंसिल हो, यीशु के नाम में कैंसिल हो और खुदा उसकी गवर्नमेंट जॉब मुकम्मल तौर पर बहाल हो और वो तेरे नाम की गवाही दे यीशु के नाम में, आमीन। तो हम और रिक्वेस्ट लेंगे खुदा उनकी शुक्रगुजारी के जितने भी
बहन भाई देख रहे, ज़रूर इस लाइव को, जो लाइव मीटिंग हो रही है, इसको ज़रूर आगे शेयर करें। एक और रिक्वेस्ट आई है, ब्रदर रुस्तम और ब्रदर अफजल, इनके पास जॉब, इनके लिए हम दुआ करेंगे खुदा इनको अच्छी जॉब दे, और ताकि ये अच्छी जॉब पर खड़े होकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, और खुदा ने हमें निकामी के लिए नहीं पैदा किया। खुदा आपकी सोच से बढ़कर आपको अच्छी जॉब देगा। और भी जितने बेटियां बेटे उनके पास जॉब नहीं, उन सब के लिए दुआ करेंगे। खुदा आप सब अफजल के लिए और ब्रदर रुस्तम के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड करे। हाँ खुदा इसी में दुआ करता हूँ भाई रुस्तम के लिए और भाई अफजल के लिए। हाँ खुदा देख उनसे प्यार करता है। ऐ खुदा शाम खुदा तो अपने लोगों पर दया कर, और यीशु तू जिंदगी को दया कर। यीशु मैं तेरी विनती करता हूँ खुदा इन जिंदगियों को छू, इनके बदलों को छू, इनकी लाइफ को अच्छा कर और ब्लेस कर खुदा यीशु जी। खुदा तू आप अपनी पाक मर्जी पर सहर कर। ऐ खुदा ताकि ये तेरे नाम को जाने और पहचाने, तेरी मर्जी को जाने और पहचाने यीशु मसीह तेरे नाम से। ताकि खुदा जब तू चाहता है कि खुदा ये तेरी खिदमत में बढ़े, तो खुदा यही इनकी जॉब है। तो खुदा उन्हें खूब कामयाब करे ताकि ये बढ़े और सरफराज हो यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, जरूर खुदावंद आपको अच्छी जॉब देगा। खुदा का पाक रूह आपको हर काम के अंदर फतह से बढ़कर गलबा देगा। तो इसी तरह और हम रिक्वेस्ट लेंगे, ताकि सिस्टर सोनिया की रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, जो कि वो चाहते हैं कि उनकी शिफ्ट मॉर्निंग हो जाए। तो हम उनके लिए, मैं उनके लिए दुआ करूंगा, भाई सब मिलकर उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा का पाक उनके ऊपर ठहरे, ताकि उनकी सोच से बढ़कर खुदा काम करे। हाँ खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हाँ खुदा तो मौजूद का खुदा है। हाँ खुदा हम मिलकर तेरे नाम से दुआ करते हैं। हाँ खुदा खुदा सोने के मार के मुताबिक बरकत चाहता हूँ ताकि तेरे बेटे की नाइट शिफ्ट है यीशु के नाम में, इनकी खुदा मॉर्निंग शिफ्ट हो। खुदा तेरा बेटा तेरे नाम की गवाही दे खुदा, ताकि तेरा बेटा खुदा तेरे नाम की चला पाए। हाँ खुदा तू आप दिल की मुराद को पूरा कर यीशु के नाम में, आमीन। तो खुदा उनका पाक रूह उनको बरकत देगा, और जो ड्यूटी जिस तरह आप चाहते हैं सिस्टम ऐसी ड्यूटी उनकी होगी। इस तरह ब्रदर जमील ने रिक्वेस्ट की है कि पास्टर जी मेरी मामा के लिए दुआ करें, ताकि जो भी उनके बदन के अंदर बीमारियां हैं ताकि खुदा दूर करे। आज रात हम यीशु के लहू को उनके बदन के अंदर मांगे। जो काम 2000 साल पहले यीशु करता था वो आज भी करने की कुदरत और पावर रखता है। ब्रदर जमील की मामा के लिए पास हम दुआ करेंगे। हाँ खुदा यीशु में दुआ करता हूँ खुदा भाई जमील की माँ के लिए। खुदा यीशु हाँ खुदा बुजुर्ग माँ को छू। हाँ खुदा ये हमारा नहीं बल्कि यीशु तेरा पाक तेरा हाथ बन जाए, और खुदा हम तेरे हाथ को ऐ खुदा तेरे पाक तेरे हाथ को ऐ खुदा बुजुर्ग माँ की तरफ बढ़ाते हैं और बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि यीशु नासरी ऐ यीशु ऐ नासरत के रब ऐ नासरत के खुदा ऐ यरूशलेम के खुदा, हम तेरे नाम से ऐ इस्राएल के खुदा, हम तेरे नाम से बुजुर्ग माँ के लिए शिफा को क्लेम करते हैं, हीलिंग को क्लेम करते हैं। यीशु के नाम में वो मुकम्मल तौर पर रिहाई पाए, शिफा पाए। खुदा बाकी खुदा तेरी कुदरत उनकी जिंदगी में काम करे यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर खुदावंद मामा को बरकत देगा, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा ने शिफा दे दी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस तरह और एक रिक्वेस्ट रही है सिस्टर अभी गौरी के लिए। अभी गौरी के लिए हम दुआ करेंगे। वो कहते हैं मेरे बेटे के लिए दुआ करें, उनको फीवर है, तो भाई साहब उनके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रूह आज उस बेटे के ऊपर ठहर दे, ताकि खुदा का पाक रूह उनको हील करे। हम उनके लिए दुआ करेंगे। हाँ खुदा यीशु तेरे कलाम में लिखा है तू परमात्मा के बच्चों को मेरे पास आने दो। हाँ खुदा तू बच्चों से प्यार करता है, बल्कि खुदा तू हर एक इंसान से प्यार करता है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है खुदा ने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्शिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ खुदा बच्चे के लिए पेट के लिए तुझसे शिफा मांगते हैं। इसी वक्त सारा तप अतहा की बुरी नजर अतहा की गंदी नजर और तप यीशु के नाम से उसके बदन से उतर जाए, यीशु के नाम से उतर जाए, यीशु के नाम से उतर जाए और खुदा मुकम्मल शिफा पाए और खुदा सुबह उठे और तेरे जलाल को देखें यीशु के नाम में।
आमीन। तो सिस्टर जी आप ईमान रखें, खुदावंद उनको बेटे को शिफा देगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, जितने भी बहन भाई हमें लाइव देख रहे हैं, अपनी अपनी दुरुखात से हमें सेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमें और ब्रदर कैसर ने ज्वाइन किया है लाहौर से, ब्रदर खुदावंद आपको भी बरकत दे। इसी तरह सिस्टर स्काई एंजल, खुदावंद आपको भी खुदा इनके भी दिल की मुरादों को खुदा पूरा करे। खुदा इनको जॉब भी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह जिनकी रिक्वेस्टें रह गई आप ज़रूर सेंड कर सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। इसी तरह हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, ताकि जब तक हम कराची के अंदर है पास्टर माइकल के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि खुदा का पाक रूह इनके ऊपर ठहरा रहे। ताकि हमने घर घर के अंदर अंजील को लेकर जाना है, ताकि बहुत से लोग तौबा करें, निजात पाए। कलाम में लिखा जब एक रूह जमीन पर तौबा करती तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। इसी तरह जितने भी बहन भाई देख रहे, कल की इबादत को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। कराची के अंदर कल इबादत है शाम 6 बजे, तो जरूर उस मीटिंग को भी दुआ में याद रखें, ताकि जब कल मैं वहाँ पर जो प्रीच करूँ खुदा का पाक रूह वहाँ पर ठहर जाए। बहुत से कलाम के वसीला से लोग तौबा करें, निजात पाए। तो बहुत से जितने भी एक और सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है, ताकि उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, ताकि जो भी उनकी शादी के अंदर भी रुकावट है तो खुदा उनको भी दूर कर। इसी तरह उनके जो शोहर है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, ब्रदर काश के लिए, ताकि जो भी उनकी जिंदगी के अंदर जो उनकी बॉडी, ताकि उनके लिए हम दुआ करेंगे, ताकि खुदा का पाक रूह उनको हील कर। जी भाई साहब ब्रदर आकाश के लिए हम दुआ करेंगे। अच्छी दुआ करता हूं आकाश के लिए। खुदा ऐ आसमानी बाप तू भाई को अच्छी जॉब प्रोवाइड करे। और खुदा बदन पर जो भी बीमारी, जो भी लानत है नबी और इसके बाद बदन की सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाते रहे। हाँ खुदा हम तेरे से खास मिन्नत करते हैं। हाँ खुदा तेरे पाक लहू को उसके बदन पर मांगते हैं। हाँ खुदा ताकि वो मुकम्मल तौर पर शिफा पाए, ताकि उसका बदन मुकम्मल तौर पर रिहाई पाए। यीशु तेरे नाम से उठे, यीशु तेरे नाम से चले, यीशु तेरे नाम से दौड़े। हाँ खुदा उनको बरकत पाए। यीशु जी मैं दुआ करता हूँ जहाँ यीशु के नाम से यीशु मसीह के नाम से जहाँ रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन के बाद यीशु के नाम करता हूँ। जहाँ से रिजेक्ट किया गया है वो रिजेक्ट जिन्होंने किया वो यीशु के नाम में खुद कॉल करें, ताकि खुदा उन्हें तेरी कुदरत को देखें और जाने कि खुदा तू हर जगह मौजूद है और बढ़ाता और सरफराज करता है, बरकत देता है यीशु के नाम में। आमीन। जिस सिस्टर ने हमारा ईमान हमने दुआ की है, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह एक और रिक्वेस्ट है, सिस्टर ने बोला कि मेरी एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी सिस के लिए दुआ करें, उसके खुदावंद अच्छा रिश्ता मुहैया करें। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, सिस्टर नीलम के लिए दुआ करें, और भी जितनी बेटियां बेटे जिनके रिश्तों के अंदर रुकावटें, हम उनके लिए भी आज दुआ करेंगे, ताकि खुदा उनको भी अच्छे अच्छे लाइफ पार्टनर दे, ताकि वो दोनों मिलकर यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सिस्टर नीलम असलम के लिए दुआ करें, ताकि खुदा उनको अच्छा रिश्ता मुहैया करे। जी भाई साहब। हाँ खुदा वो यीशु की मैं दुआ करता हूँ खुदा बहन नीलम के लिए। हाँ खुदा वो यीशु तेरे नाम से ऐ खुदा बहन के लिए अच्छा शोहर मांगता हूँ। हाँ खुदा तुझसे प्यार करने वाला हो, हाँ खुदा तुझसे दिल लगाने वाला हो, हाँ खुदा तुझसे प्यार करता हूँ जो तेरी बेटी से प्यार करता हूँ। ऐ खुदा जो मर उसके साथ वफादार रहे और खुदा तेरे साथ वफादार रहे, ताकि खुदा जिसे तू जोड़ता है उसे आदमी जुदा नहीं कर सकता। हाँ खुदा जिससे खुदा इंसान के साथ खुदा तेरे महल का रिश्ता जुड़ा है, खुदा जीवन जुड़ा है यीशु के नाम में। और वक्त आ पहुंचा इसमें यीशु मसीह के नाम में बहन तेरी कुदरत को अपनी आंखों से देखे खुदा और खुदा तेरी कुदरत को देखें और खुदा तेरे नाम को जलाल दे सके। अप्रैल खुदा यीशु जी 2021 अप्रैल के मंथ से पहले खुदा बहन तेरे नाम वही और इसकी जुबान पर होगी और खुदा तेरे नाम की गवाही देगी और खुदा सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस सिस्टर खुदावंद आपको बरकत दे, हमने दुआ की खुदा का पाक रूह बड़ा काम करेगा। इस बहन भाई जो कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस है, बहुत से बहन भाई परेशान है, मुश्किलात के अंदर है, उनको ये डर है कहीं हमें ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यीशु के
ان کے لیے نہیں ہے۔ خدا جب آپ اسے اس کے ڈر اور خوف کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو خدا آ جائے گا۔ آپ جس جگہ پر بھی جائیں گے آپ برکت کا باعث بنیں گے۔ جب آپ کے بدن کے اندر یسوع کا خون ہوگا تو آپ برکت ہوں گے، کوئی دنیا کی پاور آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ تو جتنے بھی بہن بھائی ہمیں جوائن کیے ہوئے، ہم ان سب کو برکت، ان کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ اور سسٹر نیلم کے لیے خداوند نے مجھ سے کہا کہ سسٹر نیلم اسلم آپ میری آواز سن سکتی ہیں، خدا نے آپ سے کلام کیا، خدا پروفیسر کر رہے ہیں کہ آپ 2021 آپ کی شادی کا سال ہے۔ ہاللویہ، 2021 آپ کی شادی کا سال ہے اور خدا آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرنے والا ہے، اور خدا فائنینس ہر چیز جو شادی میں آپ کو جس کی ضرورت ہے آپ ابھی سے اس کی ٹینشن میں، خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ تو فکر مت کر کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ یسوع نے آپ کی فکر کو اٹھا لیا ہے۔ 2021 آپ کی شادی کا سال ہے اور آپ گواہی کے ساتھ واپس آئیں گی۔ گاڈ بلیس۔ ہاللویہ۔ تو بھائی صاحب ہم ایک اور ریکویسٹ لیں گے، بہت سے بہن بھائی میں جو ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں، ایک اور ریکویسٹ ہے خرم گل صاحب نے بھیجی کہ پرے فار می اینڈ مائی بردر، ان کے بھائیوں کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، جو بھی ان کی فیملیز کے اندر پرابلمز ہے، جو بھی بھائیوں کے باڈیز کے بیماری، جو بھی پرابلمز انہوں نے شیئر نہیں کی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہم خرم گل کے لیے دعا کریں گے۔ خدا کا پاک روح جانتا ہے جو بھی آپ کی دل کی مرادیں ہیں، ارادے ہیں، سوچ ہے کہ حالات منصوبے ہیں، خدا مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو، میرے بیٹی کو، میرے بیٹوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آپ خداوند یسوع تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو دلوں کو بدلنے والا خدا ہے۔ ہاں یسوع ناصری میں دعا کرتا ہوں خدا بھائی خرم گل کے لیے خداوند اس کا دل یسوع تجھ سے لگے تاکہ اس کی یسوع تیرے نام سے برکت پائے، یسوع تیرے نام سے جانے پہچانی جائے، یسوع تیرے نام سے سرفراز ہو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے اس لیے اسے مجھ سے لگایا، میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اسے میرا نام پہچانا ہے۔ اب خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا بھائی کا دل تجھ سے لگے تاکہ یہ زندگیاں بدلے یسوع مسیح کے نام سے، تاکہ زندگی میں خدا تو بڑا کام کرے، تاکہ خدا یہ زندگیاں انمول ہوں، اے خدا کندر بن جائیں یسوع جی، تاکہ یہ بدن کندر بن جائیں یسوع مسیح کے نام سے، اور خدا تیرے نام سے بلیس ہوں، تیرے نام سے بڑے اور سرفراز ہوں یسوع کے نام میں۔ خدا نے جانتا ہے۔ ہم ایک اور ریکویسٹ لیں گے، شاہزل گوری کی سلام پاسٹر جی میری بہنہ انجلی کے لیے دعا کریں، خدا اسے اولاد جیسی برکت دے۔ تو اور بھی جتنی بیٹے بیٹیاں جن کے پاس اولاد نہیں ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا آج رات ان کو بھی اولاد جیسی برکت دے۔ سسٹر انجلی کے لیے دعا کریں گے، خدا ان کو اولاد جیسی برکت دے۔ ہم سسٹر انجلی کے لیے دعا کریں گے۔ خدا میں دعا کرتا ہوں بہن انجلی کے لیے، خدا یسوع بہن انجلی کو چھو پاک کرو، اور خدا سے اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ خدا میں تیرے کلام میں لکھا ہے اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے، اور خدا شام تیری بیٹی اے خدا انجلی کے لیے تیرا آسمان کھل جائے، اے خدا تو اولاد جیسی برکت بلیسنگ اس کے بدن پر جاری کر، تاکہ خدا آنے والے مہینوں کے اندر، آنے والے ہفتوں کے اندر یسوع یہ تیرے نام کی گواہی دے، تاکہ خدا یہ تیرے نام میں بڑے برکت پائے یسوع کے نام میں آمین۔ پاسٹر جی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، خدا ان کو روحانی آنکھیں دے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا کا استعمال کرے، تاکہ جہاں جہاں پر بھی جائے خدا کا پاک روح ہر کام کے اندر ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے۔ دعا کرتی ہوں بہن انجلی، خدا کا روح آپ سے کلام کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ 20 اگست 2017 کو آپ نے خدا کے حضور ایک فریاد کی تھی، جو آپ نے خدا سے اس وقت دعا میں تھی، اس وقت 20 اگست 2017 20 اگست 2017 16:59 16:59 20 اگست 2017 16:59 پر آپ نے خدا سے دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، اور وہ بات خدا کو پسند نہیں آئی۔ تو خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ پر رحم کرے، اور میرا قابل ایمان ہے کہ خدا جلد اپنے جلال کو اپنے بدن میں ظاہر کرے گا۔ گاڈ بلیس۔ خدا آپ سب کو برکت ہے۔ تو ہم دعا کریں گے، سسٹر ابھی کی گوری کی ریکویسٹ ہے میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کو اور برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہاں خدا ان سے دعا کرتا ہوں، خدا
اے خدا جو پریئر ریکویسٹ بھائی کے لیے دی ہے خدا یسوع جی میں دعا کرتا ہوں خدا بھائی کو بڑھا اور سرفراز کرے تاکہ تیرا پاک درست مدد کرے اس کی حفاظت کرے خدا اے خدا جیسا بہن چاہتی ہے ویسا ہی اس کا شوہر یسوع تیرے نام میں بڑھے اور سرفراز ہو اے خدا سے دنیاوی طور پر خوب کامیاب کرے اور ترقی دے یسوع کے نام میں آمین۔ جی برادر، اور ہم نے سے دعا کری خدا کا پاک روح ٹھہر ان کو اپنے جلال کے لیے ضرور استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح ایک اور پاس جی ثنا میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہر طرح کے جادو ٹوٹونوں سے رہائی دے۔ تو ہم ان کے لیے دعا کریں، بہت جو جن کے اوپر جادو ٹونے تویز کیے گئے، ہم ان کے لیے بھی آج رات دعا کریں گے۔ خدا کا پاک روح میرے بہنوں میں بھائیو آپ کو آزاد کرنے کو ہے۔ آج کی رات آپ کے لیے برکت کی، ترقی، سرفرازی کی رات ہے، کامیابی کی رات ہے۔ تو ہم آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو سسٹر ثنا کے لیے ہم دعا کریں گے، جو بھی ان کے خلاف ابلیس نے پلان منصوبے بنائے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا ان کو کینسل کرے۔ دعا کریں گے۔ ہاں خدا میں دعا کرتا ہوں میں خدا سسٹر ثنا کے لیے خدا تیرا کلام فرماتا ہے کوئی ہتھیار جو میرے خلاف بنایا گیا کام نہ آئے گا۔ آپ خدا ثنا کے خلاف جو بھی ابلیس نے ہتھیار بنایا گیا وہ ابھی اسی وقت خدا کی گرجدار آواز سے یسوع کے نام سے گر جائے۔ خدا تو اپنی بیٹی کو اپنا صداقت کے ذریعے ہاتھ سے استعمال اور اس سے برکت دے تاکہ تجھ میں بڑھے اور برکت پائے یسوع کے نام میں آمین۔ ہم ایک اور ریکویسٹ لیں گے برادر سنیل کے لیے، ہم دعا کریں کہ مسز تاکہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کو بیبی جیسی برکت دے۔ ہاں خدا دعا کرتا ہوں خدا ان کی مسز کے لیے خدا میں یسوع آپ خدا دیکھ یسوع کے نام میں تو ان سے خدا بہت محبت کرتا ہے، اے خدا دیکھ کے زندگی تو سے بہت پیار کرتی ہے، ہر وقت اس سے اے خدا روز آپ کو یہ دعا میں تجھ سے مانگتی ہے، اے خدا جو دعا جو فریاد اے خدا ہم یہ تیرے خاتموں کو بلکہ یسوع تیرے پاس لاتے ہیں۔ اے خدا دیکھ جس طرح اندھا اے خدا انجو بہا بہا کر آنسو بہا بہا کر یسوع تجھ سے فریاد کرتی تھی، اور خدا تو نے اے خدا اس پر رحم کیا اور علی کہے کے وسیلہ سے اسے برکت دی۔ ہاں خدا تو نے کہ ہر رات کو برکت دے اور خدا تو نے اولاد جیسی برکت دی۔ آج شام ہم مل کر میرے پاس سے ہمیں مل کر اے خدا جوڑے کے لیے بھائی سنیل کی مسز کے لیے اولاد جیسی اے خدا بلیسنگ کو مانگ لیتے ہیں، اے خدا ریلیز کرتے ہیں تاکہ یسوع یہ تیرے نام کی گواہی دیں یسوع کے نام میں آمین۔ سسٹر خداوند آپ کو برکت دے اور سنیل بھائی خداوند آپ کو بھی برکت دے، ضرور خدا آپ کو اولاد جیسی برکت دے گا۔ تو اسی طرح جتنے بھی ہمیں بہن بھائی ریکویسٹیں بھیجے جن کی ابھی تک ہم ریکویسٹ نہیں دیکھ پائے، جن کے لیے ہم دعا نہیں کر پائے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے بھی بہن بھائی ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیے ہوئے خداوند ان کو بھی برکت دے۔ تو ضرور ہمیں دعا میں یاد رکھیں تاکہ اور ہم اچھے طریقے سے خداوند کا کام کر سکیں، تاکہ روحیں بچائیں، تاکہ یسوع کے پاس ہم لے کر آئیں، خدا جائے ایک ایک کو برکت دے۔ آج کلام کا خدا خواب میں رویا میں کلام کرتا ہے اور بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ بہنوں میرے بھائیوں آپ کی زندگی کے اندر آج رات مشکلات ہے، آپ پریشان نہ ہو کیونکہ یسوع آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ یسوع بلاتا ہے آپ کو کہ آج بھی آپ توبہ کر لیں، آج بھی دل آپ یسوع کو دے دیں۔ نہیں جانتے کہ کب آپ کو خدا کہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اسی طرح آپ اچھے کام کریں تاکہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ جب خدا کو بلائے خداوند یسوع مسیح خود اٹھ کر آپ کو زندگی کا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم نے اپنی فیملیز کے لیے بھی برکت کا باعث بننا ہے، ترقی کا باعث بننا ہے۔ بہت سے بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، طرح طرح کے نشے کرتے ہیں۔ میں آج ان کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو۔ کلام لکھا گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر آپ فرض ایگزامپل اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس کے جگہ آپ کو سیلری دی جاتی ہے، لیکن ہر ایک چیز کا کیا کلام لکھا ہے، ہر ایک کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو کلام لکھا گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو
تو جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ انسان کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے. باغ عدن کے اندر کیا ہوا؟ خدا نے کہا کہ اس درخت کا تم نے پھل نہیں کھانا. تو کیا ہوا؟ جب اس نے نافرمانی کی تو وہ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے حکم کو توڑ دیا، جب خدا نے کہا ہے آدم تو کہاں پر ہے، تو اس نے وہ ڈر گیا، چھپ گیا. تو کلام میں لکھا آدم اور حوا نے کہا کہ ہم ننگے ہیں. تو خدا نے کس نے کہا کہ تم ننگے ہو؟ کیا اس نے کیا کیا؟ تو انسان گناہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ننگا کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو کلام کے مطابق بسر کرنا ہے تاکہ کلام لکھا تجربات سے معلوم کرو کہ خدا ان کو کیا پسند ہے. جو بھی آپ کام کرتے ہو آپ دیکھیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کام یہ خدا کو پسند ہے یا نہیں پسند. کلام لکھا تجربات سے معلوم کرو. تو تجربہ ہم اسی طرح سے ہی کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کام کریں، اگر آپ گالیاں نکال رہے ہیں، کلام لکھا گالیاں بکنے والا خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. شراب پینے والا یا طرح طرح کے نشے کرنے والا خدا کی بادشاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو پاس میں اگر ہم بتائیں کہ جو بہت سے بہن بھائی نشہ کرتے ہیں، جو غلط کاموں کے اندر ہیں، جو ہمارے ینگ بچے ہیں جو چرچز کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے عزیزوں کے غیر معبودوں کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، جو غیر معبودوں کی طرف بھاگتے ہیں، ان کا غم بڑھ جائے. ہاللیلویہ. اگر آپ نشہ کرتے ہیں یا غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ جاتے ہیں، ہم ایک مثال دے رہے ہیں. یا ایسا کہ عزیزوں کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، زندگیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نشہ کر رہے ہیں یا کسی غلط جگہ پر جا رہے ہیں یا کسی غیر معبود کو جا کر سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے 100 گنا گناہ جو ہے 100 گنا سر کلیم کر رہے ہیں. اور کیا زمین کے نیچے ہمیشہ کی آگ کو اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی آگ اور گندک کی جن کو، یعنی کہ جو کہ دوسری موت ہے. یعنی جو انسان ہے توبہ نہیں کر رہا، نشہ کر رہا ہے یا بدکاری کر رہا ہے یا غیر معبودوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اپنی عدالت تو پھر دوسری موت اس کے لیے لکھی ہے. یعنی کہ تو ایماندار لوگ ہیں وہ تو آسمان میں اٹھا لیے جائیں گے، لیکن جو نشہ کرتے ہیں وہ خدا کے بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ موتوں کو ملے گی. اور دوسری موت کیا ہے؟ آگ ان کا حصہ ہوگا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل خدا سے لگائیں. جب ہم اپنا دل خدا سے لگاتے ہیں تو خدا پھر ہمیں پیار کرتا ہے، خدا ہمیں گلے سے لگاتا ہے. یسوع ہمیں گلے سے لگاتا ہے، ہمیں بوسہ دیتا ہے، ہمیں کس کرتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کا راہ دکھاتا ہے. جب موسیٰ کتاب کو پڑھتے ہیں کہ بنی قوم اسرائیل اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پھنسی، اور جب وہ پھنسی تو کہانے لگی، رونے لگی، اے خداوند ہم پر رحم کر. اور خدا نے پھر ان کے لیے ایک مددگار بھیجا. خدا نے کہا کہ اب میں اترا ہوں کہ تمہیں مصریوں سے آزاد کراؤں. اور خداوند نے موسیٰ کو چنا اور موسیٰ کو بھیجا کہ وہ بنی قوم اسرائیل کو کیا دلائے؟ رہائی دلائے. اور موسیٰ بنی قوم اسرائیل رہائی پانے والی تھی تو ان کے بھی کوئی راہ نہ تھا، لیکن خداوند نے، رب الافواج نے، اسرائیل کے خدا نے پہلے قدم پر جہاں پانی پانی تھا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، خدا نے ان کے لیے پانی میں سے، بڑے سمندر میں سے راستہ بنایا. ہاللیلویہ. تو پھر خدا آپ کے لیے بھی، اگر آج آپ سے یہ نشہ نہیں چھوٹ رہا، اگر آج آپ سے یہ بدکاری نہیں چھوٹ رہی، اگر آج آپ توبہ نہیں کر رہے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہے اگر خدا کرو آپ کو کال کر آپ کو آواز دے رہا ہے کہ توبہ کریں، تو پھر عزیزو رکیں اور خدا کی آواز کو سنیں اور توبہ کریں. خداوند آپ کے لیے نئی راہ بنائے گا. جس طرح بنی قوم اسرائیل کے راستہ بند کر دیا گیا تھا، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب میں اب وقت گزر گیا، اب شاید نشہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، عزیزو ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. خدا نے کیا بنی قوم اسرائیل کے راستہ نہیں بنایا، خدا نے بنایا جہاں پانی پانی تھا. پانی میں سے کیا آپ پیدل چل سکتے ہیں؟ کوئی انسان پانی میں چل نہیں سکتا، لیکن خدا نے اس سمندر کو کیا کر دیا؟ خشک کر دیا. اس کی خشکی تاریخی
راستہ بنایا. تو جب آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو خدا پھر آپ کو راستہ بنائے گا. اور خدا اس طرح بنے قوم اسرائیل کے آگے آگے چلتا رہا اور خدا آپ کے آگے چلے گا اور آپ کو بیابان کی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس بیابان کی زندگی سے نکال کر آپ کو دودھ اور شہد اس شہر کو لے جائے گا. وہ زندگی آپ کو دے گا اس شہر میں لے جائے گا جو مقدس شہر ہے, ہولی سٹی, جو نیا یروشلم میں خدا اس کو آپ کو اس کا وارث بنائے گا. گاڈ بلیس یو. خدا بھائی صاحب کو برکت دے. بھائی صاحب نے بہت اچھا میسیج ہے. میرے بہنوں میرے بھائی, آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کو کب بلا لے گا. جب اگر آپ نشے کے اندر ہی مر جائیں گے, برے کاموں کے اندر مر جائیں گے, تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کہاں جائیں گے. تو اگر ہم ایک اور ریکویسٹ لیں گے, اس سے پہلے آپ بردر داؤد ریاض سندھو ہمیں واچ کریں لاہور سے, ہم بردر آپ کو بھی ویلکم خوش آمدید کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی فیملی کو سلامت رکھے. اس طرح بردر عدنان ہنس کی ریکویسٹ ہے کہ میری جاب کے لیے دعا کریں, خدا ان کو اچھی جاب پرووائڈ کرے. یہ بردر لاہور سے ریکویسٹ کریں تو بھائی صاحب ان کے لیے دعا کریں گے بردر عدنان کے لیے, تاکہ خدا ان کو اچھی جاب پرووائڈ کرے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا میں دعا کرتا ہوں خدا بھائی عدنان کے یسوع کے نام میں جو بھی راستے بند کیے ہیں, میں یسوع کے نام میں ان کے رستوں کو کھول دو میرے پاس خدا. بیریئر سے خدا آبسٹیکل سے وہ ساری آبسٹیکل سارے بیریئر یسوع کے نام سے بریک ہو جائیں, یسوع کے نام سے بریک ہو جائیں. اور خدا بھائی بڑھے تیرے نام سے, اے خدا اٹھے تیرے نام سے اور سرفراز ہو خدا جس کمپنی میں یہ جہاں بھی بھائی جاب پانا چاہتا ہے, اے خدا بھائی کو ورڈ ٹو ورڈ جیسا ہی تو سے دعا میں مانگتا ہے اس کے لیے ویسا ہی کر خدا کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ خدا تو دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. اے خدا بھائی عدنان کی دل کی مراد کو پورا کرے, تاکہ خدا ہی تیرے کلام کی گواہی دے کہ تیرا کلام سچا, تیرے وعدے ہاں میں ہیں. خدا تو وعدوں کا سچا خدا ہے. یسوع تو ہے جو وعدہ کیا عدنان کے ساتھ کہ تو دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. اے خدا بھائی عدنان کی دل کی مراد کو پورا کریں اور اسے اچھی جاب مہیا کریں تاکہ تیری بلیسنگ کو ریسیو کریں یسوع کے نام میں, آمین. جی بردر عدنان خداوند آپ کو برکت دے, خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو خدا نے آپ کو اچھی جاب دے دی ہے. کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. تو اب آپ ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو جاب دے دیا, خداوند کی شکر گزاری کریں. تو ہم اور دعا کریں گے خداوند کی شکر گزاری کرتے. جتنے بھی بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے لیے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے. خدا کا پاک روح ملک پاکستان کے اندر بڑا کام کرے. میں اور بھائی صاحب مل کر ہم دعا کریں. جتنے پاکستان کے اندر چرچز کام کریں, لوگ توبہ کریں نجات میں, تو بھائی صاحب مل کر دعا کریں. تو آپ کیا جتنے بہن بھائی دیکھنا چاہتے ہیں لاسٹ میں ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا عزیزوں کہ اپنا وقت خدا کو دیں. خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہر ایک کام جو زمین کے اوپر ہوتا ہے آسمان کے نیچے اس کا ایک وقت ہے. تو خدا کو زمین پر پہلے سال کا پہلا حصہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے سال کا پہلا حصہ خدا کو دیں. صبح کا دن کا پہلا حصہ پہلا وقت آپ خدا کو دیں. یسوع مسیح بھی جب وہ زمین پر منادی کرنے کے لیے نکلتا تھا تو دن کا پہلا حصہ اپنے باپ کو دیتا تھا. یعنی کہ وہ فجر کے ویلے یعنی کہ صبح سویرے اٹھ کر گھٹنوں کے بل ہو کر اونچائی میں جا کر تنہائی میں جا کر باپ سے باتیں کرتا تھا. یہی بات خدا یسوع مسیح نے ہمیں دعا کی تعلیم دیتے ہوئے سکھائی کہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا, دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر, تو تیرا باپ تو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے, تجھے بدلا دے گا. عزیزو, ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ مل کر دعا کریں تاکہ خدا ہماری جلدی سنے. لیکن عزیزو, خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جتنی زندگیوں نے ونڈ کیا, اگر ہم بائبل میں کہتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں, ابراہیم تنہائی میں دعا کرتا تھا, یسوع تنہائی میں دعا کرتا تھا, موسیٰ کیا کہتا تھا تنہائی کیسے دعا کرتا تھا, تنہائی میں دعا کرتا تھا. اگر آپ کے انڈیویجول پریئر میں جو پاور ہے وہ فیملی پریئر میں نہیں, انڈیویجول پریئر میں شخصی پریئر میں جو پاور ہے وہ خداوند آپ کو اس کے وسیلہ سے بڑھائے گا, سرفراز کرے گا. تو آپ اپنی دعائیں زندگی کو بڑھائیں, اپنے وقت کو خدا کے لیے بڑھائیں, اپنا وقت خدا کو دیں. جن کا پہلا حصہ جب آپ خدا کو دیں گے
तो याद करें, गौर करें कि दिन का बाकी जो हिस्सा है वो आपका कितना ब्लेस होगा, कितना बाबरकत होगा। खुदा आपको वो सब कुछ मुहैया करेगा जो आज तक आपको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिन का पहला हिस्सा खुदा यीशु को दिया है। आप यीशु से मिलकर आए हैं, आप खुदा से मिलकर आए हैं जिसने आपको वो दिन दिया है कि आप उस दिन उठकर दुनिया में निकले और काम काज करें और खुदा में बढ़े और बरकत पाएं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप खुदा को वक्त दिया करें। जब आप खुदा को वक्त देंगे तो खुदा फिर आपको बहुत कुछ जो आप चाहते हैं वो भी देगा और इससे ज़्यादा खुदा आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा और सरफराज करेगा। तो खुदा के कलाम में लिखा, खुदा का वादा है कि ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो हम आप सब के लिए दुआ करें, जितने भी हमें बहन भाई देख रहे हैं हम सब के लिए दुआ करेंगे। जिस तरह बताया कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करें। कलाम लिखा दुआ करने में हिम्मत ना, और बहुत से बहन भाई हैं जो सुबह को दुआ नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात क्यों है। कलाम में लिखा काम या कलाम जो कुछ भी करो खुदावंद यीशु के नाम से करो। जब आप अपने काम का आगाज यीशु के नाम से करेंगे, अगर के बलीस ने आपकी ज़िंदगियों के अंदर नाकामियों को भी अगर रखा है तो खुदा नाकामियों को भी कामयाबी के अंदर बदलने की कुदरत रखता है। खुदा ज़िंदगी मौत को बदलने की कुदरत रखता है। तो हम दुआ करेंगे आप सब के लिए, जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं हम सब के लिए दुआ करें। जितने भी बहन भाई आज हमारी इस मीटिंग को अटेंड किया, खुदा आप सबको बरकत, हम आपको फिर वेलकम खुश आमदीद करते हैं और हमें दुआ में याद रखिएगा ताकि खुदा और अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करें। तो जो भी आपकी दिल की मुरादें हैं, अगर कि आपके बदनों के अंदर बीमारी, आप खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आज खुदावन के खादम ने और मैंने मिलकर हमने दुआ की और हमारा ईमान है खुदा ने बड़ा काम किया है। तो हम उनके पाकिस्तान के लिए आप सब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु हम पूरे हालेलुया 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 पाकिस्तान के हर शहर, खुदा हर गांव, हर कस्बे, हर गली के लिए, हर घर के लिए दुआ करते हैं। खुदा के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूं खुदा, तूने आज हमें अपने जाल के लिए इस्तेमाल किया मेरे बाप खुदा। जितने भी तेरे देख रहे बेटे लाइव देख रहे मेरे बाप खुदा, जितने भी ज्वाइन कर रहे खुदा, एक एक खुदा चढ़ा रहे मेरे पाप खुदा, तेरा रूह कुदस एक एक ताकि वो लोग जो तक तुझे नहीं जान सके वो तुझे जाने और पहचाने और खुदा तौबा करें और तेरी तरफ रुजू लाए ताकि खुदा वो जाने यीशु तेरे नाम से बचे और तेरी बादशाह के वारिस हो। बहुत से तेरे बेटे जिनके बुरे काम नहीं करते यीशु के नाम में बुरे काम करना शुरू करें मेरे पाप खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता जो भी मेरे बदनों के अंदर बीमारियां कमजोरी यीशु के नाम में जाती है। को सुन, इनकी दुआओं को कबूल कर खुदा, इनकी बदनों की सारी कमजोरी को दूर कर। ऐ खुदा जितने भी बीमार हैं बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में, हर शहर में, कराची शहर, लाहौर शहर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, ऐ खुदा हर शहर जिसका नाम हम लेना भूल गए, हर शहर गांव, ऐ खुदा हर छोटा बड़ा हॉस्पिटल जो तेरे ईमानदार लोग हैं, ऐ खुदा जो तेरे प्यारे, ऐ खुदा अगर बीमार है, बीमारी के बिस्तर पर है तो यीशु के नाम में बीमारी के बिस्तरों से उठ खड़े हो। तेरा पाक रूह हर जान को छुए और उन्हें उठा खड़ा करे यीशु के नाम में, ताकि खुदा तेरा नाम उनकी जिंदगी में जलाल पाए। खुदा वो भाई और बहन जो अच्छी जॉब की तलाश में यीशु के नाम में उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड करने का खुदा, हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम में जाती है मेरे पाप खुदा। यीशु को गुजारिश करते हैं बुजुर्ग बेटे स्टडी करते हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तेरा पाक लाइफ की खैर दे मेरे पाप खुदा। इसे मुहैया करें ताकि उनके परमानेंट वीज़े ऐ खुदा विभिन्न मुल्कों के लगे ताकि वो खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदा तुम के पैसों के वसाइल पैदा कर, तेरी कुदरत को देखें और तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करें। आप खुदा दुआ करते हैं खुदा हर एक घर के लिए ताकि खुदा हर घर में खुदा तेरे अंजील तेरी मनाती तेरे कलाम को हर घर तक पहुंचा सकें ताकि खुदा हर घर तेरा नारा लगाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु जी उठा, खुदा यीशु जिंदा है। आप खुदा को सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप खुदा मैं तमाम प्यारों
से खुदा बरकत चाहता हूँ। हाँ खुदा तेरे तमाम अजीम खादमों के लिए, तमाम पास्टर साहिबान लोग जो खिदमत करते हैं खुदा तेरे नाम से खिदमत करते हैं खुदा पूरे मुल्क के पाकिस्तान के तमाम चर्चिस में, खुदा घरों में, खुदा सबको बरकत दे, पुलिस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं मेरे खुदा, जितने लोग के पाकिस्तान के अंदर दारे काम कर रहे हैं मेरे खुदा, हम यीशु के नाम में उनको बरकत देते मेरे खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर तेरी रूह कुदस की मेरे रोशन हो और तारीखी की कुव्वतें यीशु के नाम में जाती रहें, ताकि खुदा मुल्क पाकिस्तान का हर शहर कस्बा घर यीशु के नूर से रोशन हो, ताकि खुदा तेरा नाम जलाल पाए। दुआ करते हैं खुदा उन बहन भाइयों के लिए, खुदा बुजुर्गों को जो अपना घर चाहते हैं जमीन पर, खुदा तूने घर जैसी नेमत अता कर, अपना घर अता कर खुदा तुम लिए आप रुपए पैसे के वसाइल उनके लिए वादा कर, उनके लिए फाइनेंस खुदा, ताकि जमीन पर उन्हें फ्री में गिफ्ट के तौर पर खुदा ने घर को दिया कर, खुदा जिनके घुटनों के अंदर पत्थरियां मेरे खुदा, यीशु के नाम में दुआ करता हूं, यीशु के नाम में नहीं हो जाए। we welcome होली खुदा मुकम्मल शिफा दे, खुदा दुआ करते हैं खास कर खुदा गॉड लव्स यू व्हाट्सएप ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे बरकत चाहते हैं, खुदा इस ग्रुप को और बढ़ा और सरफराज कर खुदा, ताकि वहाँ भी खुदा तेरी कुदरत और तेजी के साथ बढ़े और खुदा का नाम चला पाए, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने आज मेरा ईमान ज़रूर आप हमें इजाज़त दे, मुझे और पास्टर मैकल को। भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और इसी तरह जितने भी बहन भाई देख रहे, ज़रूर हम नेक्स्ट आपसे ज़रूर फिर हम जब लाइव होंगे ज़रूर अपनी अपनी दरख्वास्त से सेंड कीजिएगा। और इसी तरह एक नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।